Good morning. Today we will continue with our constitutional reforms, that is the Morley Minto reforms 1909. The Morley Minto reforms of 1909, though it sought to extend the number of members of the legislative councils, it extended the members of the legislative councils में जो members थे उनको increase करा number, but at the same time introduce the separate electorates for the Muslims. So first feature is increased number of members in the legislative council. Second was for the first time introduce separate electorate for the Muslims, emphasizing on this policy of divide and rule. लेकिन सबसे पहले हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझना पड़ेगा. सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन्स कि नाउ ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी वुड वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स. मतलब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको वोट हिंदूज नहीं कर सकते और सिख्स नहीं कर सकते और वोट किसी भी कम्युनिटी का वो नहीं कर सकते एक्सेप्ट मुस्लिम्स. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज किसी एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड है और वहाँ पे हिंदूज आर इन द मिनोरिटी, तो नेचुरली वहाँ पे मुस्लिम खड़े होंगे क्योंकि वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट है. वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है दैट इज रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे खड़ा मुस्लिम होगा, बट द हिंदूज हैव नो राइट टू वोट फॉर दैट मुस्लिम कैंडिडेट. तो नेचुरली जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट चाहिए ओनली मुस्लिम्स. वो हिंदूज जो मिनोरिटी में उसका कुछ हेल्प करता है नहीं करता है, ये उसकी विश पे है. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है कि एवरीबडी जो अभी अपन की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी चल रही है फॉर एससी एंड एसटी एंड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, उसका मतलब होता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर एग्जांपल कोटा में दिस टाइम जो मिनिस्टर या कोई भी सीट्स जो रिजर्व होती है उसमें से अगर कोई वुमेन कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट के लिए दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. Except women, no other candidates could stand for that constituency, but everybody is eligible to cast their vote. This is the difference between separate electorate and reserved electorate. So separate electorate basically policy of divide and rule थी Muslims की, and the extremist leaders protested against the communal electorate. Mahatma Gandhi was very disappointed and he says the Morley Minto reforms have been our undoing. इसके साथ साथ हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे. इसके बाद हम जस्ट आफ्टर दैट वी कम्स with our home rule movement. Home rule movement. Home rule movement was very famous. लेकिन एक बात, home rule movement was separately started by first in April 1916 by B.G. Tilak, by Lokmanya Tilak, and the other movement was started in September 1916 by Annie Besant. हम सबसे पहले एनी बेसेंट पे आते हैं. एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था दैट वाज स्टार्टेड इन मेड्रास एंड जॉर्ज अर्नोल्डी वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस होम रूल मूवमेंट अलोंग विद एनी बेसेंट. जो कंपैरिजन है वो लोकमान्य तिलक की होम रूल और एनी बेसेंट का, दैट इज एनी बेसेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज मच लूज देन लोकमान्य तिलक और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंडिया वाइड में नहीं थी.
और लोकमान्य और एनी बेसेंट की बात की जाए तो एनी बेसेंट वाज एन आयरिश लेडी, बट इसका जो लव था वो इंडिया के लिए था. ही केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी. सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हैज डन लॉट for the reform for women, for the education. He associated with Theosophical Society and actively involved in political movements also. And these two movements are separately organized. But in 1916 they held a joint session. And Annie Besant was also arrested, but later on she was released. और उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि that's why Annie Besant was made the first woman president. इसको first woman president बनाया था in the Congress session in 1917. अगर आता है who was the first woman president of Indian National Congress, that is Annie Besant in 1917. But she was not Indian. अगर Indian की बात की जाए, then Sarojini Naidu was the first Indian woman president of the Congress. Okay, comes on Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak started his home rule movement in Maharashtra, except Bombay, और इसका जो it was popularized with his newspaper केसरी in मराठा और केसरी इसी के न्यूज़पेपर था, इससे भी पॉपुलराइज हुआ. लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मराठा वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड केसरी वाज अ मराठी न्यूज़पेपर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये न्यूज़पेपर. और लोकमान्य तिलक हमेशा गवर्नमेंट जो भी गलत करती थी ऑलवेज उसको क्रिटिसाइज करते थे न्यूज़पेपर में. 60 एक्ट के अंदर लोकमान्य तिलक को 2 बार जेल भी डाला गया, और वहाँ पे जेल में ही रोट द गीता रेसिन द एराटिक फॉर्म ऑफ द वेदास, 2 बुक्स भी इन्होंने लिखी थी. एंड ही वाज अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया. बिना बोलते ना कि बस क्राउन नहीं था इनके सिर पे, बट अदरवाइज ही वाज एन अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया. द गवर्नमेंट arrested Lokmanya Tilak, but the momentum of home rule movement was not decreased, and it started the environment with the slogan Suraj is my birthright and I will have it. I will have it. इस तरह से होम रूल मूवमेंट भी अपने साइड बाय साइड चल रहा था. और एक और इसके साथ ही हैपेंस हो रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, दैट इज लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. This one was an important step forward in achieving Hindu-Muslim unity. That was the Lucknow Pact 1916. लेकिन इसमें भी हम important step जरूर कह रहे हैं. But in this the Congress accepted a separate electorate. तो naturally एक तरह से appeasement policy अपनाई कांग्रेस ने, and ultimately it fired the ambition of Jinnah and the Muslims, and ultimately the Muslims demanded Pakistan. तो एक तरह से हम इसको अचीवमेंट भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बिकॉज कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट इट फायर द एम्बिशन ऑफ मुस्लिम्स. इन द लखनऊ पैक्ट एक और 2 मेन हैपनिंग्स हुई थी, दैट इज बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड सेशन ऑफ लखनऊ 1916. द कांग्रेस accepted the separate electorate, and they jointly demanded dominant status for the country. अब इन्होंने दोनों ने jointly गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी फॉर द डोमिनेंट स्टेटस. और सेकेंड मेन हैपनिंग्स क्या हुई थी, दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट वर also
readmitted into the Congress. जो एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेल्ड हुए थे फ्रॉम द कांग्रेस 1907 एट द सूरत सेशन, नाउ दे वर अगेन रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस. अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक साथ हो गए अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस. अब मेन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन मेन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स वाज दैट इज Montesquieu Chelmsford reforms of 1919. Montesquieu was the viceroy, was the secretary of India at that time. Chelmsford was the viceroy of India at that time in 1919. Remember it? जो हमने Morley Minto reforms पढ़ा था in that time. Morley was the secretary of India and Minto was the governor general. Here Montesquieu was the secretary of India and Chelmsford was the viceroy of India. एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, what is the difference between the governor general and the viceroy? Earlier, before the Act of 1858, there was no designation of the viceroy. गवर्नर जनरल का डिसीजन था आफ्टर द एक्ट ऑफ 1858. नाउ गवर्नर जनरल वाज आल्सो नोन एज वाइसरॉय. लेकिन जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी, दैट इज 11 ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, उनके साथ जब ये गवर्नर जनरल डील करेगा, ही वाज नोन एज गवर्नर जनरल. लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, बट व्हाइल ही डील्स विद द प्रिंसली स्टेट, दैट गवर्नर जनरल वाज नोन एज द वाइसरॉय. क्लियर? So, Montesquieu-Chelmsford reforms were passed in 1919 with an aim of gradually developing self-governing institutions in India. Gradual development होगा self-government का. इसमें जो important point है एक और, इसमें now the chapter electorates were extended to 6 Christians और यूरोपियंस क्रिश्चियंस, इनको भी एक्सटेंड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, एम्फसाइजिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. Besides Muslims, other minorities included Sikhs, Anglo-Indians, Christians and Europeans were also given the right to separate electorates. Besides Muslims, other minorities included Sikhs, Anglo-Indians, Christians and Europeans were also given the right to separate electorate. Second, the system of diarchy was introduced in the province. Diarchy was introduced in the provinces. अब हमें the system of diarchy पढ़ना है. What is diarchy? Means dual administration. Diarchy was introduced in the provinces. इसमें क्या हुआ था? The division of subjects into reserved and transfer. Like
defense, finance, irrigation. These subjects come under the reserved subjects transferred, local self-government, health, agriculture, education comes under the transfer subject. The reserved subjects were to be governed by the Governor General with the help of ministers appointed by him. The governor was to administer the subjects with the help of nominated members. And here the subjects were to administer by the governor with the elected member of legislative council. इधर जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर अपॉइंट कर नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को. These members ministers are not elected by the people, and here the transfer subjects were to be administered with the governor with the elected members legislative council. अब जो डिवीजन था इसमें डिफेक्ट क्या था? फर्स्ट अगर हम डिवीजन देखें, जैसे इरिगेशन वाज अ रिजर्व सब्जेक्ट एंड एग्रीकल्चर वाज अ ट्रांसफर सब्जेक्ट, एंड इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर वर बोथ इंटरकनेक्टेड, इनको अलग नहीं कर सकते. तो डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज अनसाइंटिफिक. फाइनेंस रिजर्व सब्जेक्ट था, फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो मिनिस्टर्स थे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे थे. तो क्लासेस तो शुरू से हो गए. बिसाइड दिस जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दे आर गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर था, गवर्नर इनको डिसमिस भी कर सकते थे. तो इलेक्टेड मेंबर्स हेल्ड देयर पोस्ट विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो उनकी जो पोजीशन थी बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी कि किसको प्लीज करे, गवर्नर को करे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को करे. One minister has said that I was the Minister of Agriculture minus irrigation, I was the Minister of Forest minus mines. मतलब फॉरेस्ट और माइंस का भी एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, लेकिन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ही इरेलेवेंट थे. गवर्नर को पावरफुल बनाया गया था इन कंपेरिजन टू इलेक्टेड मेंबर्स. सो डायरेक्टली वाज फेल्ड. And now comes on the other features. That is the central
legislature was to consist of two houses, the council of the state, that is called upper house, जैसे अपन की राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा भी हुई, काउंसिल ऑफ स्टेट वो अपर हाउस हो गया, एंड द सेकंड द लेजिस्लेटिव असेंबली जो अपन की लोकसभा कहलाती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। फोर्थ पॉइंट, द टेन्योर ऑफ द अपर हाउस वाज 5 ईयर एंड ऑफ द लोअर हाउस 3 ईयर, मतलब 5 साल के लिए अपर हाउस होगा और लोअर हाउस के जो टर्म है दैट इज 3 इयर्स। अगर इनके साथ साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं इनके साथ ही साथ एक और बहुत मेन हैपनिंग्स हुई थी, दैट इज अपीयरेंस ऑफ गांधी और द स्टार्टिंग ऑफ गांधीयन एरा। गांधी जी जो पहले साउथ अफ्रीका में थे, he came on the Indian soil in 1915 and established the साबरमती आश्रम, और साथ में इन्होंने इनकी जो टेक्निक की अगर हम बात की जाए दैट इज सत्याग्रह, ट्रुथ, अहिंसा, इस तरह की काफी ज्यादा इनकी टेक्निक थी एंड अपील टू द मासेस। अगर हम मॉडरेट्स की बात की जाए, मॉडरेट्स जो थे बिल्कुल हाई क्लास पीपल थे, नॉर्मली अपने दादा नौरोजी मोस्ट ऑफ टाइम लंदन पार्लियामेंट में रहते थे, इन्फ्लुएंस करते थे इनके, तो कोई मास मूवमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात की जाए तो थोड़ा बहुत तिलक ने जो शिवाजी फेस्टिवल या गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा था उससे या होम रूल मूवमेंट उससे करा था, सम पीपल अटैच्ड टू द होम रूल मूवमेंट। रेवोल्यूशनरीज की बात की जाए तो रेवोल्यूशनरीज की ओनली एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल, तो एक्चुअली मैक्सिमम सेक्रीफाइस था बाय द मिनिमम पीपल, बहुत ज्यादा हम सेक्रीफाइस नहीं, मतलब एकदम से गोली नहीं खा सकते, गोली नहीं मार सकते, हमारे we can't do, the common man can't do it, पर गांधी जी की जो टेक्निक थी दैट वाज टू द ग्रास रूट लेवल की थी, लाइक सत्याग्रह के टेक्निक की बात की जाए दैट इज स्टिकिंग टू द ट्रुथ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सत्य पे अटक रहना चाहे कुछ भी हो जाए। अहिंसा की बात की जाए तो नॉन वायलेंट, यू शुड बी नॉन वायलेंट नॉट इन बाय वर्ड थॉट एंड डीड, अहिंसा आपके हर समय हर जगह होनी चाहिए, वायलेंस आपके वर्ड थॉट और डीड कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ट्रुथ आप हमेशा अपने सच्चाई पे अडिग रहो चाहे कोई से भी सर्कमस्टांसेस जाए, कोई से भी, और साथ में जो हेट है वो क्रिमिनल से मत करो बल्कि उसको चेंज कर, उसके जो सोल है उसको चेंज करने की आप कोशिश करो। तो ये जो टेक्निक थी वो कॉमन मास को बहुत ज्यादा अपील की गई, और गांधी की जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ था वो चंपारण में था, चंपारण इट इज इन बिहार, 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था। Prior to him, the Indian National Congress had failed to mobilize the masses. वो masses को बहुत ज्यादा mobilize नहीं कर पाया। गांधी जी adopted these simple means to involve the masses in the national movement. और उनके जो 3 मोटिव ज्यादा मेन थे, that is the appeal for Hindu-Muslim unity, removal of untouchability, and upliftment of women. तो इनके 3 मेन मोटो थे, दैट इज ही एम्फसाइज्ड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सेकेंड रिमूवल
of untouchability. Third, development of women. और साथ में बहुत सारे मोटिव थे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और ये सब, emphasis on small scale industries, on spinning, on weaving, इस तरह से बहुत सारे motives थे इनके. His aims were very broad-based and meant for the benefit of the majority of Indian population. सर आपकी रिकॉर्डिंग